Welcome you all again in today's session of controlled drug delivery system. In today's session, we are here to discuss about the various factors affecting design of controlled release formulations. There are mainly two categories of factors that affect for the controlled release formulation. First one is the physicochemical properties and second one is the biological factors. So in first category, we will discuss about the solubility, partition coefficient, drug stability, molecular size and diffusibility, drug pKa and ionization at the physiological pH. Under the heading of biological factors, we will discuss about the absorption, distribution, protein binding, elimination, half-life, therapeutic window, dose size, absorption window, dose-dependent bioavailability, disease state, and marginal safety, margin of safety. So these are the factors that affect the design of control release formulation. First one is the factors, physicochemical properties, under which solubility, partition coefficient, drug stability, molecular size, diffusibility, drug pKa, and ionization at the physiological pH. Biological factors, absorption, distribution, protein binding, elimination, half-life, therapeutic window, dose size, absorption window, dose-dependent bioavailability, disease state, and margin of safety. Now we will discuss one by one. So in the physicochemical property, first one is the solubility. Drugs low aqueous solubility are poor candidate of controlled drug delivery system. Drug with low aqueous solubility. Drug with low aqueous solubility are poor candidate for controlled drug delivery system. Absorption is the dissolution rate लिमिटेड. एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिजोल्यूशन रेट लिमिटेड होता है और डिजोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी पे. तो सॉल्युबिलिटी अगर कम होगी तो डिजोल्यूशन रेट भी कम होगा और अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन भी कम होगा. एब्जॉर्प्शन इज dissolution rate limited. Such drugs do not require any further control over their dissolution rate and thus may not seem to be good candidates for oral controlled release formulation. ऐसी ड्रग जिनकी solubility कम है उनका dissolution rate ऑलरेडी कम रहेगा. ऑलरेडी कम होने के कारण उनको फर्दर उसके डिजोल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वह गुड कैंडिडेट नहीं है ओरल कंट्रोल रिलीज फार्मुलेशन के लिए. फिर से देखें, ड्रग विथ लो एक्वा सॉल्युबिलिटी आर पुअर कैंडिडेट फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है वह पुअर कैंडिडेट होते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी फार्मुलेशन के लिए. अब क्यों होते हैं? क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम है तो डिसोल्यूशन रेट ऑलरेडी कम हो जाएगा और डिसोल्यूशन रेट ऑलरेडी कम होगा तो फर्दर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वह गुड कैंडिडेट नहीं है ओरल कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस के लिए. ड्रग शुड हैव मिनिमम 0.1 mg पर ml एक्वस सॉल्युबिलिटी. ड्रग जिसके जो हम की कंट्रोल रिलीज फार्मुलेशन के लिए यूज करने वाले हैं उसकी मिनिमम सॉल्युबिलिटी 0.1 mg पर ml होना चाहिए. ड्रग शुड हैव मिनिमम 0.1 mg per ml aqueous solubility. Second point is the partition coefficient. Partition coefficient. Octanol water partition coefficient log P is used. Generally कौन सा? Octanol water partition coefficient हम यूज करते हैं. log P का हम इसमें यूज करते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं. और Octanol water partition coefficient से हमको क्या मिलती है? इसकी लिपोफिलिसिटी मिलती है. It determine lipophilicity of the drug. Partition coefficient, octanol water partition coefficient should be range of 1 to 2. जो octanol water partition coefficient की रेंज कितनी होना चाहिए? 1 to 2 के बीच में होना चाहिए.
Drug with higher partition coefficient value easily permeate through the biological membrane. जिनकी पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यू ज्यादा होती है, दैट मीन वो लिपोफिलिक होते हैं, और लिपोफिलिक होने के कारण वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से अच्छे से इजीली परमेट हो जाते हैं. ड्रग दैट हैव लोअर पार्टीशन कोएफिशिएंट आर नॉट सुइटेबल फॉर ओरल कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम. और ऐसी ड्रग जिनका पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यू कम होती है वह सुइटेबल नहीं होते हैं ओरल कंट्रोल रिलीज फार्मुलेशन के कारण, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू परमिशन नहीं हो पाता है. एंड ड्रग that have higher partition coefficients are not suitable, are also not suitable for oral controlled drug delivery system because they will not partition out of lipid membrane once it get in the membrane. और ऐसी ड्रग जिनका पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है वो भी सुइटेबल कैंडिडेट नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वह एक बार अगर लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं तो वो पार्टीशन होके मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकल पाएगा, और बाहर नहीं निकलेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा. इसलिए बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू. नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्रग स्टेबिलिटी. Stability of drug in the exposed environment, stomach or intestine, important factor. A drug in solid state undergo degradation at a much slower rate than a drug in the suspension or solution form. है ना? तो stability of drug is exposed environment such as stomach or intestine is important factor. important कहाँ रहती है कि ड्रग की स्टेबिलिटी स्टमक में और इंटेस्टाइन में कैसी है, ये important फैक्टर होता है. ठीक है. और ड्रग इन सॉलिड स्टेट अंडरगो डिग्रेडेशन एट ए मच स्लोअर रेट देन ए ड्रग इन सस्पेंशन और सॉल्यूशन फॉर्म. और ड्रग सॉलिड स्टेट में उसका डिग्रेडेशन कैसा होता है? स्लोअर रेट से होता है एज कंपेयर टू सस्पेंशन और सॉल्यूशन और अदर लिक्विड फॉर्मुलेशन. सॉलिड स्टेट में डिग्रेडेशन उसका स्लोअर रेट से होता है और लिक्विड स्टेट में डिग्रेडेशन थोड़ा सा फास्ट रेट से होता है. ड्रग दैट आर अनस्टेबल इन द गैस्ट्रिक pH can be developed as a slow release dosage form and the drug residence can be delayed till the dosage form reaches the intestine. तो अगर हम कंट्रोल रिलीज फार्मुलेशन बनाते हैं, है ना, तब जो कि ड्रग अनस्टेबल है गैस्ट्रिक pH पे, तो उसका ड्रग का रेसिडेंस टाइम बढ़ जाएगा. है ना, कहाँ पे ड्रग का रेसिडेंस टाइम बढ़ जाएगा? बॉडी में, जिसके कारण वो क्या होगा? फर्दर वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगी और इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वो स्टेबल हो जाएगी. तो ऐसी ड्रग जो कि गैस्ट्रिक pH पर अनस्टेबल हैं, उनको अगर हम स्लो रिलीज डोसेज फॉर्म के रूप में बनाते हैं तब उसका रेसिडेंस टाइम बढ़ जाएगा, और रेसिडेंस टाइम बढ़ने से उसका रिलीज डिले हो जाएगा और उसके कारण डोसेज फॉर्म इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगी और वहां पे स्टेबल हो जाएगी. है ना. ड्रग दैट अंडरगो गट वॉल मेटाबॉलिज्म एंड स्लो अनस्टेबिलिटी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर नॉट सुइटेबल फॉर ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. ऐसी ड्रग जिनका गट वाल मेटाबॉलिज्म होता है और इनस्टेबल होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वह गुड कैंडिडेट नहीं होते हैं ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए, वह सुइटेबल कैंडिडेट नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज द मोलिकुलर साइज एंड डिफ्यूजिविटी. मोलिकुलर साइज एंड डिफ्यूजिविटी. Ability of drug to diffuse through the membrane is called diffusibility. Ability of drug to diffuse through membrane is called the diffusibility. ड्रग की एबिलिटी जिसके द्वारा वह मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होती है वह कहलाती है डिफ्यूजिबिलिटी. इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू मोलिकुलर साइज. डिफ्यूजिबिलिटी मोलिकुलर साइज के इनवर्सली रिलेटेड होती है. मोलिकुलर साइज ज्यादा होगी, डिफ्यूजिबिलिटी कम होगी. मोलिकुलर साइज कम होगी, डिफ्यूजिबिलिटी ज्यादा होगी. ठीक है. तो इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू मोलिकुलर साइज. हायर मोलिकुलर साइज ड्रग आर पुअर कैंडिडेट फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम
ऐसी ड्रग जिनका मॉलिक्यूलर साइज बहुत ज्यादा होता है वह पुअर कैंडिडेट होते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। मॉलिक्यूलर साइज शुड बी लेस देन 600 डाल्टन। मॉलिक्यूलर साइज हमेशा 600 डाल्टन से कम होना चाहिए कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने के लिए। प्रोटीन पेप्टाइड आर नॉट सुइटेबल फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। प्रोटीन पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, इसके लिए वह सुइटेबल कैंडिडेट नहीं होते हैं कंट्रोल रिलीज फार्मुलेशंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्रग पीके एंड आयोनाइजेशन एट द फिजियोलॉजिकल पीएच। ड्रग exist in largely ionized form or are poor candidate for the oral control drug delivery system। ऐसी ड्रग जो आयोनाइज्ड फॉर्म में ज्यादा रहती हैं वह पुअर कैंडिडेट होते हैं ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। ऐसी ड्रग जो आयोनाइज्ड फॉर्म में ज्यादा रहती हैं वह पुअर कैंडिडेट होते हैं ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ आयोनाइज्ड ड्रग इज 3 to 4 times less than that of the unionized form। Absorption rate of ionized drug का absorption rate 3 to 4 times कम होता है अनआयोनाइज्ड फॉर्म के कंपैरिजन में। अनआयोनाइज्ड फॉर्म का absorption rate ज्यादा होता है, आयोनाइज्ड फॉर्म का रेट कम होता है, absorption rate कम होता है। Acidic drug with pK range from 3 to 7.5 and for basic drug pK range from 7 to 11 are ideal for the passive absorption। अगर एसिडिक और बेसिक ड्रग का हम यूज कर रहे हैं तो उसका पीके एसिडिक ड्रग के लिए 3 to 7.5 और बेसिक ड्रग के लिए 7 to 11 आइडियल होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए। इस पीएच पे, इस पीके पर वो क्या होते हैं, पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो आयोनाइजेशन का भी इफेक्ट होता है। तो अभी हमने देखे सॉल्युबिलिटी का क्या रोल है ना, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी फार्मुलेशन में पार्टीशन कोएफिशिएंट का, ड्रग स्टेबिलिटी का, मॉलिक्यूलर साइज एंड डिफ्यूजिबिलिटी का, एंड ड्रग पीके एंड आयोनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच। ठीक है, और इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कवर द वेरियस बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिजाइन ऑफ कंट्रोल रिलीज फार्मुलेशन, or we will cover in the next lecture. Thank you for your attention. Stay safe and healthy. Welcome you all again in today's session of controlled drug delivery system. In today's session, we are here to discuss about the various factors affecting design of control release formulations. There are mainly two categories of factors that affect for the control release formulation. First one is the physicochemical properties and second one is the biological factors. So in first category, we will discuss about the solubility, partition coefficient, drug stability, molecular size and diffusibility, drug pKa and ionization at the physiological pH. Under the heading of biological factors, we will discuss about the absorption, distribution, protein binding, elimination, half-life, therapeutic window, dose size, absorption window, dose-dependent bioavailability, disease state, and marginal safety. Margin of safety. So these are the factors that affect the design of control release formulation. First one is the factors, the physicochemical properties, under which solubility, partition coefficient, drug stability, molecular size, diffusibility, drug pKa and ionization at the physiological pH. Biological factors, absorption, distribution, protein binding, elimination, half-life, therapeutic window, dose size, absorption window, dose-dependent bioavailability, disease state, and margin of safety. Now we will discuss one by one. So in the physicochemical property, first one is the solubility.
Drugs low aqueous solubility are poor candidate of controlled drug delivery system. Drug with low aqueous solubility. Drug with low aqueous solubility are poor candidate for controlled drug delivery system. Absorption is the dissolution rate limited. Absorप्शन जो होता है वो डिजोल्यूशन रेट लिमिटेड होता है और डिजोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी पे। तो सॉल्युबिलिटी अगर कम होगी तो डिजोल्यूशन रेट भी कम होगा और अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। एब्जॉर्प्शन इज dissolution rate limited. Such drugs do not require any further control over their dissolution rate and thus may not seem to be good candidates for oral controlled release formulation. ऐसी ड्रग जिनकी solubility कम है उनका dissolution rate ऑलरेडी कम रहेगा। ऑलरेडी कम होने के कारण उनको फर्दर उसके डिजोल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वह गुड कैंडिडेट नहीं है ओरल कंट्रोल रिलीज फार्मुलेशन के लिए। फिर से देखें, ड्रग विथ लो एक्वस सॉल्युबिलिटी आर पुअर कैंडिडेट फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है वह पुअर कैंडिडेट होते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी फार्मुलेशन के लिए। अब क्यों होते हैं? क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम है तो डिजोल्यूशन रेट ऑलरेडी कम हो जाएगा और डिजोल्यूशन रेट ऑलरेडी कम होगा तो फर्दर कंट्रोल की करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वह गुड कैंडिडेट नहीं है ओरल कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस के लिए। ड्रग शुड हैव मिनिमम 0.1 mg पर ml एक्वस सॉल्युबिलिटी। ड्रग जिसके जो हम की कंट्रोल रिलीज फार्मुलेशन के लिए यूज करने वाले हैं उसकी मिनिमम सॉल्युबिलिटी 0.1 mg पर ml होना चाहिए। ड्रग शुड हैव मिनिमम 0.1 mg per ml aqueous solubility. Second point is the partition coefficient. Partition coefficient. Octanol water partition coefficient log P is used. Generally कौन सा? Octanol water partition coefficient हम यूज करते हैं, log P का हम इसमें यूज करते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं। और ऑक्टेनॉल वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट से हमको क्या मिलती है? इसकी लिपोफिलिसिटी मिलती है। इट डिटरमाइन lipophilicity of the drug. Partition coefficient, octanol water partition coefficient should be range of 1 to 2। जो octanol water partition coefficient की रेंज कितनी होना चाहिए? 1 to 2 के बीच में होना चाहिए। Drug with higher partition coefficient value easily permeate through the biological membrane। जिनकी partition coefficient वैल्यू ज्यादा होती है दैट मीन वो लिपोफिलिक होते हैं और लिपोफिलिक होने के कारण वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से अच्छे से इजीली परमेट हो जाते हैं। ड्रग दैट हैव लोअर पार्टीशन कोएफिशिएंट आर नॉट सुइटेबल फॉर ओरल कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और ऐसी ड्रग जिनका पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यू कम होती है वह सुइटेबल नहीं होते हैं ओरल कंट्रोल रिलीज फार्मुलेशन के कारण, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू परमिशन नहीं हो पाता है। एंड ड्रग दैट हैव हायर पार्टीशन कोएफिशिएंट्स आर नॉट सुइटेबल आर आल्सो नॉट सुइटेबल फॉर ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बिकॉज दे विल नॉट पार्टीशन आउट ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन वंस इट गेट इन द मेम्ब्रेन। और ऐसी ड्रग जिनका पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है वो भी सुइटेबल कैंडिडेट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वह एक बार अगर लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं तो वो पार्टीशन होके मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकल पाएगा और बाहर नहीं निकलेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्रग स्टेबिलिटी। Stability of drug in the exposed environment, stomach or intestine, important factor. A drug in solid state undergo degradation at a much slower rate than a drug in the suspension or solution form, है ना? तो stability of drug is exposed environment such as stomach or intestine is important factor। important कहाँ रहती है कि ड्रग की स्टेबिलिटी स्टमक में और इंटेस्टाइन में कैसी है, ये important factor होता है। ठीक है,
और ड्रग इन सॉलिड स्टेट अंडरगो डिग्रेडेशन एट ए मच स्लोअर रेट देन ए ड्रग इन सस्पेंशन और सॉल्यूशन फॉर्म। और ड्रग सॉलिड स्टेट में उसका डिग्रेडेशन कैसा होता है, स्लोअर रेट से होता है एज कंपेयर टू सस्पेंशन और सॉल्यूशन और अदर लिक्विड फॉर्मुलेशन। सॉलिड स्टेट में डिग्रेडेशन उसका स्लोअर रेट से होता है और लिक्विड स्टेट में डिग्रेडेशन थोड़ा सा फास्ट रेट से होता है। ड्रग दैट आर अनस्टेबल इन द gastric pH can be developed as a slow release dosage form and the drug residence can be delayed till the dosage form reaches the intestine। तो अगर हम कंट्रोल रिलीज फार्मुलेशन बनाते हैं, है ना, तब जो कि ड्रग अनस्टेबल है गैस्ट्रिक पीएच पे, तो उसका ड्रग का रेसिडेंस टाइम बढ़ जाएगा, है ना। कहाँ पे रेसिडेंस, ड्रग का रेसिडेंस टाइम बढ़ जाएगा बॉडी में, जिसके कारण वो क्या होगा, फर्दर वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगी और इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वो स्टेबल हो जाएगी। तो ऐसी ड्रग जो कि गैस्ट्रिक पीएच पर अनस्टेबल हैं, उनको अगर हम स्लो रिलीज डोसेज फॉर्म के रूप में बनाते हैं, तब उसका रेसिडेंस टाइम बढ़ जाएगा और रेसिडेंस टाइम बढ़ने से उसका रिलीज डिले हो जाएगा और उसके कारण डोसेज फॉर्म इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगी और वहां पे स्टेबल हो जाएगी, है ना। ड्रग दैट अंडरगो गट वॉल मेटाबॉलिज्म and slow instability in the small intestine are not suitable for oral controlled drug delivery system। ऐसी ड्रग जिनका गट वाल मेटाबॉलिज्म होता है और इनस्टेबल होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वह गुड कैंडिडेट नहीं होते हैं ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए, वह सुइटेबल कैंडिडेट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मोलिकुलर साइज एंड डिफ्यूजिविटी। Molecular size and diffusivity. Ability of drug to diffuse through the membrane is called diffusibility। Ability of drug to diffuse through membrane is called the diffusibility। ड्रग की एबिलिटी जिसके द्वारा वह मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होती है, वह कहलाती है डिफ्यूजिबिलिटी। इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू मोलिकुलर साइज। डिफ्यूजिबिलिटी मोलिकुलर साइज के इनवर्सली रिलेटेड होती है। मोलिकुलर साइज ज्यादा होगी, डिफ्यूजिबिलिटी कम होगी, मोलिकुलर साइज कम होगी, डिफ्यूजिबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू मोलिकुलर साइज। हायर मोलिकुलर साइज ड्रग आर पुअर कैंडिडेट फॉर कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऐसी ड्रग जिनका मोलिकुलर साइज बहुत ज्यादा होता है, वह पुअर कैंडिडेट होते हैं कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। मोलिकुलर साइज शुड बी लेस देन 600 डाल्टन। मोलिकुलर साइज हमेशा 600 डाल्टन से कम होना चाहिए कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने के लिए। प्रोटीन पेप्टाइड आर नॉट सुइटेबल फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। प्रोटीन पेप्टाइड का मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है, इसके लिए वह सुइटेबल कैंडिडेट नहीं होते हैं कंट्रोल रिलीज फार्मुलेशंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्रग पीके एंड आयोनाइजेशन एट द फिजियोलॉजिकल पीएच। ड्रग exist in largely ionized form or are poor candidate for the oral controlled drug delivery system। ऐसी ड्रग जो आयोनाइज्ड फॉर्म में ज्यादा रहती हैं, वह पुअर कैंडिडेट होते हैं ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। ऐसी ड्रग जो आयोनाइज्ड फॉर्म में ज्यादा रहती हैं, वह पुअर कैंडिडेट होते हैं ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ आयोनाइज्ड ड्रग इज 3 to 4 times less than that of the unionized form। Absorption rate of ionized drug का absorption rate 3 to 4 times कम होता है unionized form के कंपैरिजन में। unionized form का absorption rate ज्यादा होता है, ionized form का रेट कम होता है, absorption rate कम होता है। Acidic drug with pK range from 3 to 7.5 and for basic drug pK range from 7 to 11 are ideal for the passive absorption। अगर एसिडिक और बेसिक ड्रग का हम यूज कर रहे हैं, तो उसका पीके एसिडिक ड्रग के लिए 3 to 7.5 और बेसिक ड्रग के लिए 7 to 11 आइडियल होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए। इस पीएच पे, इस पीके पर वो क्या होते हैं, पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो आयोनाइजेशन का भी इफेक्ट होता है। तो अभी हमने देखे सॉल्युबिलिटी का क्या रोल है
है ना। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी फार्मूलेशन में पार्टीशन कोफिशिएंट का, ड्रग स्टेबिलिटी का, मोलिकुलर साइज एंड डिफ्यूजिबिलिटी का, एंड ड्रग पीके एंड आयोनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच। ठीक है। और in the next session we will cover the various biological factors that affect the design of controlled release formulation, or we will cover in the next lecture. Thank you for your attention. Stay safe and healthy. Cover in the next